Hello students, welcome to YSR Academy. Today we are going to go to the next chapter of biology, which is called as molecular basis of inheritance. In the previous modules we finished the chapter of inheritance and variation. Now this is the connecting second chapter, which is related to the genetics, and we'll be taking it further and talking about the basis of molecular genetics, or in short understanding what is DNA. Okay, as a molecule, what is a function of the DNA, and what all functions can it perform inside the cell. Now, this chapter is somewhat related to inheritance and variation, and I would highly suggest you to please watch the previous videos so as your concept will be better clear. Now, starting with the chapter of molecular basis of inheritance, we'll first understand what this chapter exactly talks about. Now, in your previous classes, you must have already understood that there is something called as DNA. Okay, there is something called as DNA, and this DNA is present inside the cells. This DNA is present inside the cells, and we're talking about nearly around 100 years ago, yeah, when we didn't have that kind of technological advancements wherein we had knowledge about DNA. We didn't knew what is nucleic acids. We didn't knew what is the function of the nucleic acids in terms, either it can be in DNA or in terms of RNA. We didn't knew what is exactly the structure or the function of the DNA. हमें कुछ नहीं पता था. At that point of time, there were multiple people who were actually curious to find out how this DNA looks and what is the function of the DNA. At that point of time, in the year 1850s and near around those that years, it was believed that protein, which is also a biomolecule inside your cell, is responsible for doing the job of general transmission of the characters from one cell to another, from one generation to another. ये सारा चीज पहले ये माना जाता था कि प्रोटीन ये चीज कर रहा है, एंड तब ये माना जाता था कि डीएनए न्यूक्लिक एसिड, तब के हिसाब से जो न्यूक्लिक एसिड्स थे, दे वर वेरी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, कॉम्पैक्ट इन स्ट्रक्चर, नॉट सो मच ऑफ सिग्निफिकेंस एंड ऑल ऑफ दैट. But then this notion of whether protein or DNA was the genetic material needed to be broken down, because otherwise today, whatever we know about the concept of genetics, whatever today we know about DNA and its function and structure wouldn't be possible if we didn't knew what was DNA all about, what was nucleic acids all about few couple of years or more than couple of years back. So today we are going to understand something called as DNA. Now there was one scientist, guys. एक scientist थे. उन scientist का नाम था Friedrich Miescher. Now Friedrich Miescher was a scientist who, for the very first time, isolated nucleic acids from pus cells. Okay, अब ये pus cells उनको कहाँ पे मिले? Now these pus cells were obtained from the bandages. ओके, बैंडेजेस से, बैंडेज उन्होंने लिया, बैंडेज जो आप लगाते हैं कोई भी अगर डैमेज हुआ, इंजरी हुआ, सो नियर बाय हॉस्पिटल में से उन्होंने वो बैंडेजेस को लिया. देन ही आइसोलेटेड दिस पस सेल्स using saline. Okay, using saline, and after he isolated the pus cells, because pus cells definitely contain certain types of bacteria, उनके पास डेफिनेटली कोई ना कोई एक बैक्टीरिया था, एंड हमारे बॉडी के कुछ इम्यून सेल्स भी थे. अभी ये जो हमारे पास जो सेल्स है, जो इम्यून सेल्स हमारे हैं, दीज आर न्यूक्लिएटेड सेल्स. जैसे ही मैंने उसको एक अल्कलाइन सोल्यूशन से ट्रीट किया, अल्कलाइन विच इज नियर बेसिक, ओके, जैसे मैंने अल्कलाइन सोल्यूशन से उसको ट्रीट किया, ये जो आपका न्यूक्लियस है, दिस न्यूक्लियस गॉट ब्रोकन डाउन. ओके, न्यूक्लियस गॉट ब्रोकन डाउन, एंड वंस अ न्यूक्लियस वाज ब्रोकन डाउन, आपका जो जेनेटिक मटेरियल था ना, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल था. ओके, दिस जेनेटिक मटेरियल था. ना ये जेनेटिक मटेरियल बाहर आया, एंड देन ही ऑब्जर्व्ड, फेडरिक ऑब्जर्व्ड दैट
ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसका इनहेरेंट जो नेचर है, इनहेरेंट जो नेचर है, इट इज एसिडिक. It is acidic. And because the nature of the genetic material was found to be acidic, he termed it as nucleic acid. He termed it as nucleic acid. Now मतलब इन शॉर्ट हमको ये समझने का कोशिश करना है यहाँ पे कि इन्होंने सबसे पहले बार ये कॉन्सेप्ट को पुट फोर्थ किया समझने के लिए कि भाई एग्जैक्टली डीएनए है क्या. डीएनए समझने के लिए डीएनए का मतलब न्यूक्लिक एसिड के बारे में थोड़ा सा डिस्कवरी किया, थोड़ा सा रिसर्च किया एंड उनको पता चला कि भाई जो न्यूक्लिक एसिड का जो inherent property है, that property is just acidic. And this all experiment was happening in the year 1869. Now, near about 1869, post then near about early 1900s, Misher was the scientist who actually understood that this nuclein or something called as nucleic acid has the net negative charge, which means it is acidic in nature. So therefore इनके वजह से आगे चल के बहुत डिस्कवरी को बूम मिला. एंड देन देयर वर मल्टीपल ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हु आल्सो टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीएनए. सो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन एंड जरा समझने का कोशिश करते हैं द डिस्कवरी ऑफ डीएनए एज genetic material. Okay, discovery of DNA as genetic material. Now students जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि इनिशियली क्या बिलीव किया जाता था. इनिशियली ये बिलीव किया जाता था कि प्रोटीन है जो ये काम सब कर रहा है एंड ये नोशन शायद गलत था उस वक्त के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ. एंड इसके वजह से पीपल हैव टू कम अप विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, पीपल हैड टू कम अप विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट वेदर इट वाज डीएनए or it was protein which was genetic material. And therefore there were multiple batch of scientists who did multiple forms of experiments and also ensured that yes, DNA was a genetic material. Now how did they proceed forward? हम लोग सबसे एक pioneer scientist का नाम यहाँ पे mention करेंगे and the scientist is none other than Griffith. ओके ना, ग्रिफिथ ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए. स्टूडेंट्स मैं चाहूंगा आप इसको अच्छे से सुने, ठीक है. एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए. नाउ ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट वाज नियर अराउंड अर्ली 1900s. अर्ली 1900s के आसपास 1928 के आसपास इन्होंने एक कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. इनका एम बेसिक क्लियर था. He wanted to find out DNA as a genetic material. उनको ये find out करना था and therefore he proceed forward. उन्होंने क्या लिया? उन्होंने he took two bacterial strains. Okay, bacterial strains का in short simple मतलब types. Okay, दो अलग अलग बैक्टीरिया के टाइप लिए हैं. So he isolated two types of strains. One was rough strain, which was also, I'm so sorry, rough strain was which was also called as R, and he also isolated what is smooth strain, also called as S. Now ये कौन से बैक्टीरिया थे गाइस? ये कौन से बैक्टीरिया थे? These bacterial strains were Diplococcus pneumoniae. Okay, the strain was Diplococcus pneumoniae. Diplococcus pneumoniae is a bacteria which causes pneumonia. जिसके उन्होंने दो strains लिए हैं. One was R, which was called as rough. Another is called as S, which is also called as smooth. इसके अंदर का जो rough था और एक smooth था. ओके, smooth था. अभी रफ एंड स्मूथ का प्रॉपर्टी क्या है? ये दोनों भी एक ही बैक्टीरिया के टाइप है. ये एक ही बैक्टीरिया के टाइप है. सो देयरफॉर एक ही बैक्टीरिया मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एक ही बैक्टीरिया के दो अलग अलग फॉर्म्स है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं इसको. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रफ स्ट्रेन लिया. अब ये जो रफ स्ट्रेन था, इट वाज नॉन विरुलेंट, नॉन पैथोजेनिक. ओके, नॉन विरुलेंट मतलब इन्फेक्शन कॉजिंग नहीं था
इन्फेक्शन कॉजिंग नहीं था, पैथोजेनिक नहीं, स्प्रेड नहीं हो पा रहा था, एंड ऑल्सो स्मूथ स्ट्रेन जो था एस टाइप, इट वॉज विरुलेंट एंड इट वॉज पैथोजेनिक, इट वॉज पैथोजेनिक। तो ना इन दोनों के केस में मैं चाहूंगा आप जरा अच्छे से बोर्ड में देखिए, जरा समझने का कोशिश कीजिए कि जो आर स्ट्रेन था या फिर एस स्ट्रेन था बैक्टीरिया का, एंड आर एंड एस दोनों मिलाकर उन्होंने ये डिप्लोकोकस निमोनिया का स्ट्रेन लिया, एंड दिस डिप्लोकोकस निमोनिया के अंदर जो आर स्ट्रेन था, आर स्ट्रेन, इट वॉज फाउंड टू बी, आर स्ट्रेन वॉज फाउंड टू बी non capsulated, it was found to be non capsulated, and यहां पे जो आपका इधर लिख दे रहा हूं मैं, स्मूथ स्ट्रेन जो था, स्मूथ स्ट्रेन, इट वाज कैप्सुलेटेड। कैप्सुलेटेड मतलब इट हैड अ टफ कैप्सूल आउटसाइड द बॉडी सरफेस, द बैक्टीरियल सरफेस। कभी कभी योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो सेज वन मोर वर्ड फॉर डिप्लोकोकस, मतलब उन्होंने और एक नाम यहाँ पे मेंशन किया, तो वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट इट। इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेप्टो, it is called as streptococcus pneumonia. Again, it causes simple similar type of infection. So आपके टेक्स्ट बुक में streptococcus pneumonia है, so उन्होंने ये लिया। Then he also took mice, okay, Griffith also took mice, okay, उन्होंने mice भी लिया। अभी उन्होंने क्या किया, उनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। ब्रीफली मतलब मैं उसको 4 ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए वो चीज। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहला उन्होंने लिया है, फर्स्ट केस में उन्होंने लिया माइस, ओके, माइस, एंड इंजेक्टेड आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया, आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया। सो माइस था, आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया था ना। आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया अगर आप देखेंगे, इट वाज नॉन पैथोजेनिक। तो माइस के अंदर जैसे मैंने इंजेक्ट किया ना आर टाइप का बैक्टीरिया, जो माइस था, माइस इट सर्वाइव्ड, माइस जो था वो सर्वाइव किया, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा देखिए केस 2, देखिए केस 2 में उन्होंने क्या किया, ही टुक माइस प्लस इंजेक्टेड एस टाइप बैक्टीरिया। अभी देखो प्रीवियस स्लाइड में एस टाइप वाज इन्फेक्शन कॉजिंग ना, एस टाइप वाज इन्फेक्शन कॉजिंग, इट इज विरुलेंट, पैथोजेनिक, सो इट इज इन्फेक्शन कॉजिंग। एंड बिकॉज माइस के अंदर मैंने एस टाइप इंजेक्ट कर दिया था, दिस माइस डाइड, ओके। एंड थर्ड केस उन्होंने लिया, विच वाज माइस प्लस हीट किल्ड एस टाइप। स्टूडेंट्स, हीट किल्ड एस टाइप का मतलब है कि जो एस टाइप बैक्टीरिया को मैंने हीट के जरिए मार दिया है, सो इट्स अ काइंड ऑफ अ डेड बैक्टीरिया। जब डेड बैक्टीरिया रहा तो वाज देयर एनी काइंड ऑफ अ रिएक्शन? द आंसर वाज नो, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। जो इन्फेक्शन कॉज करने वाला है वही वहां पे सर्वाइव नहीं किया है। मतलब जो क्या रहेगा, जो माइस है, माइस इट विल सर्वाइव, यहां तक तो इट वॉज फेयर इनफ, प्रीटी अंडरस्टैंडेबल था, बिकॉज आर टाइप का बैक्टीरिया बिल्कुल भी पैथोजेनिक नहीं था, इट वॉज नॉन विरुलेंट एंड देयरफॉर इट कॉज्ड इन्फेक्शन। उन्होंने इन्फेक्शन नहीं कॉज किया, इसकी वजह से माइस सर्वाइव हो गया। एस टाइप का बैक्टीरिया जो था, इट वॉज विरुलेंट, इट वॉज पैथोजेनिक, इन्फेक्शन कॉजिंग था वो, एंड इसकी वजह से उन्होंने उस बैक्टीरिया ने माइस को जो है वो मार दिया, एंड इसकी वजह से माइस वॉज फाउंड टू बी डेड। When we talk about S type, heat killed S type लिया, माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माइस स्टिल सर्वाइव, बिकॉज जो मारने वाला था वो खुद मर गया है, ऐसा याद रख सकते हैं आप, ठीक है। फिर फोर्थ केस उन्होंने क्या लिया ना, फोर्थ केस वाज समथिंग वेरी डिफरेंट। व्हाट ही टुक वाज, फोर्थ केस में ही टुक माइस प्लस ही टुक लिविंग आर टाइप, प्लस ही टुक हीट किल्ड एस टाइप। सो इसने 2 बैक्टीरिया का मिक्सचर कर दिया और उसने इंजेक्ट कर दिया माइस में। अभी देखो गाइस, लॉजिकली अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मारने वाला था वो खुद मर गया, जो मार नहीं सकता वो जिंदा है।
अभी जो न मार नहीं सकता वो जिंदा है, फिर भी वो माइस को तो इन्फेक्शन करने से रहा, माइस में इन्फेक्शन पॉसिबल नहीं है। बट अगर माइस में इन्फेक्शन पॉसिबल नहीं है तो माइस शुड सर्वाइव, माइस तो जिंदा होना चाहिए था। बट टू हिज सरप्राइज ग्रिफिथ ऑब्जर्व दैट यहां पे जो माइस है, माइस, इट वॉज फाउंड टू बी डेड, it was found to be dead. Now the question arises, why? Now the question arises, why? So based on the observations which were stated by Mendel, I'm so sorry, based on observations by Griffith, what did he conclude? That living R-type bacteria, living R-type bacteria have taken up something from heat killed S type. ना उस वक्त पे उन्होंने उस समथिंग को एक नाम दे दिया, एंड द नेम was called, it was, the term was called as transforming principle. Okay, transforming principle. सो उनके हिसाब से ये क्या था कि भाई कुछ तो जो आर टाइप था, देखो आर टाइप तो जिंदा था ना, केस 4 में देखिए आप, आर टाइप तो जिंदा था, बट आर टाइप के बैक्टीरिया ने भाई कुछ तो, वो जो मर गया है ना एस टाइप, जो हीट किल्ड एस टाइप है ना, उधर से कुछ तो लिया है। ओके, समथिंग हैज बीन टेकन अप, एंड उस वक्त पे उन्होंने उसको टर्म दे दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। एंड बिकॉज दैट लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया वाज एबल टू टेक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल फ्रॉम द हीट किल्ड एस टाइप, दिस आर टाइप का बैक्टीरिया जो है के स्टूडेंट्स, ये जो बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस, जो आर टाइप बैक्टीरिया था, ओके, जो आर टाइप बैक्टीरिया था, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू S type bacteria, got converted into S type bacteria, and because it got converted into S type bacteria, it was able to cause infection. It was able to cause infection. That is what it is. Now the question still remains, you know, कि आपको ये तो पता है कि भाई there is something called as transforming principle, जो ग्रिफिथ ने पुट फोर्थ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं था। बट अभी नेक्स्ट हर्डल, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज कि ठीक है, ये तो ठीक है, बट ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे? सो व्हाट डिड अदर साइंटिस्ट डू? देयर वर 3 अनदर साइंटिस्ट इन द ईयर 1944, 3 batch of scientists. So we are talking about the second group, which is called as Avery McLeod and McCarty experiment. Okay, McLeod and McCarty experiment. Now this Avery, McLeod and McCarty experiment was actually the biochemical explanation. Okay, it was a biochemical explanation, or simply it was a biochemical experiment conducted in the year 1944. ओके, अभी इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है ना, दीज एवरी, मैक्लियोड, मैकार्टी, दे सेपरेटली आइसोलेटेड, ओके, दे सेपरेटली आइसोलेटेड डीएनए, आरएनए, proteins and other materials from S टाइप। तो उन्होंने क्या किया? S टाइप के बैक्टीरिया में से डीएनए को आइसोलेट किया, उन्होंने आरएनए को आइसोलेट किया, उन्होंने प्रोटीन्स को आइसोलेट किया, और अभी वो लोग सेपरेटली ये लोग क्या कर रहे थे, इनको ये फाइंड आउट कर रहा था कि पक्का भाई है कौन इसके पीछे, ये जो यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ इसके पीछे एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो एस टाइप का आरएनए था, जो एस टाइप आरएनए था, इट वाज इंजेक्टेड इन आर टाइप। ओके, इट वाज इंजेक्टेड इन आर टाइप। नाउ जब वो इंजेक्ट हुआ आर टाइप के अंदर, देयर वाज
नो ट्रांसफॉर्मेशन। ना व्हाट वाज नो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या? ये देखो ग्रिफिथ ने यहीं पे मेंशन किया था, नो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब यहाँ पे जो आर टाइप का बैक्टीरिया है ना, वो आर का आर में ही रहा, वो आर का आर में ही रहा। ओके, ये तो उन्होंने कंडक्ट किया, ठीक है चलो। अभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने वापस एस टाइप का प्रोटीन लिया, एस टाइप का प्रोटीन लिया एंड ही अगेन इंजेक्टेड इनटू आर टाइप। Now again there was no transformation seen. Okay, there was no transformation, कोई भी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखा एंड जो आर टाइप का बैक्टीरिया था वो आर टाइप में ही बच गया, वो आर टाइप में ही बच गया। ठीक है, नाउ द थर्ड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट वाज व्हेन ही टुक एस टाइप डीएनए plus which means when he injected into R type. Now यहाँ पे there was something which was different. यहाँ पे बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्मेशन दिखा था, मतलब बैक्टीरिया ने ट्रांसफॉर्मेशन किया था एंड जो आर टाइप का बैक्टीरिया था ना वो एस टाइप में कन्वर्ट हो गया था। which means who was the transforming principle? कौन था वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल? It was none other than the DNA. And therefore, based on his experiment, he was able to conclude that it is not the RNA, it is not the protein, but it is the DNA. To take it down further, okay, to take it down further, जब मैं प्रोटीएज ऐड करता हूं, प्रोटीएजेस क्या है? प्रोटीएजेस ऐसे एंजाइम्स है जो प्रोटीन को तोड़ते हैं। अगर मैंने इस सोल्यूशन में प्रोटीएजेस ऐड कर तो प्रोटीन टूट गया, पर डीएनए टूटा क्या? डीएनए नहीं टूटा। तो प्रोटीएज डालने के बाद देयर वाज स्टिल ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच वाज सीन, ट्रांसफॉर्मेशन उनको फिर भी दिखा था, बिकॉज ऑब्वियसली ना, बिकॉज डीएनए तो टूटा नहीं है, प्रोटीएज से प्रोटीन टूट गया, डजंट मैटर। तो उन्होंने नेक्स्ट प्रोसीजर क्या किया? आरएनएजेस लिए। आरएनएजेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आरएनएजेस क्या होता है? आरएनएजेस मतलब समथिंग व्हिच कैन ब्रेक डाउन आरएनए, एंजाइम व्हिच कैन ब्रेक डाउन आरएनए। ये ले लिया, स्टिल देयर वाज ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज आरएनएज ने डीएनए को थोड़ी ना तोड़ सकता है। सो वो तो आरएनए को तोड़ा, आरएनए को तोड़ा तो डीएनए तो इंटैक्ट था वैसा का वैसा, तो इसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी हो पाया। नाउ व्हेन ही टुक डीएनएज, जब उन्होंने डीएनएज लिया, नाउ यहाँ पे उनको ये रिसर्च जो उन्होंने किया वो एकदम पक्का हो गया कि भाई जब आप डीएनए को तोड़ते हो तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, विच मीन्स कि अगर डीएनए टूट गया है तो फिर आर टाइप विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एस टाइप। सिंपल एज दैट. This experiment was one of the pioneers experiment in talking about how DNA is responsible for transmission of the characters from one generation to another. बट एज यू कैन सी, जरा एक बार स्क्रीन पे अगर आप अच्छे से देखेंगे आपको ये नोटिस होगा कि हम लोगों ने दोनों बार आप अगर नोटिस करेंगे हम लोगों ने दोनों बार क्या किया है? हम लोगों ने बैक्टीरिया में ही काम किया, बैक्टीरिया में ही काम किया। तो अभी क्या करना है अपने को? वी ऑल्सो वॉन्टेड टू टॉक अबाउट अ बैक्टीरियोफाज विच मीन्स इन केस वायरस। सो अभी वायरसेस के बारे में देखते हैं। अभी वायरसेस के बारे में एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमारे पास आए थर्ड बैच ऑफ साइंटिस्ट विच वॉज कॉल्ड as Hershey and Chase. So Hershey and Chase experiment अपन यहाँ पे समझते। ओके, हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट अभी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने क्या किया? दे टुक अ बैक्टीरियोफाज। ओके, सो उन्होंने बैक्टीरियोफाज लिया, ना तुम्हारे मन में डाउट रहेगा सर बैक्टीरियोफाज होता क्या है? लीजिए बताता हूं। बैक्टीरियोफाज इज अ वायरस विच इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया, अ वायरस विच कैन इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। तो एक ऐसा टाइप का वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है। और हर्शी एंड चेज ने क्या किया? इनका जो जेनेटिक मटेरियल था यहाँ पे उन्होंने लिया 2 रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स और जस्ट रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स, 2 रेडियो एक्टिव चीजें ली, एटम्स ली। वन वाज P32 and then you have sulfur which was S35. okay, इन्होंने ये दोनों चीजें ली और फिर वायरस को ये जो बैक्टीरियोफाज था, अभी यहाँ पे जरा समझेंगे।
ये जो बैक्टीरियोफाज था, बैक्टीरियोफाज जो था, ये बैक्टीरियोफाज को उन्होंने बोला इन्फेक्ट कर दो. सो बैक्टीरियोफाज गॉट इनटू द बैक्टीरिया, ओके, इंसर्टेड अ जेनेटिक मटेरियल. बैक्टीरिया के अंदर यू हैड नॉर्मल सल्फर एंड नॉर्मल फॉस्फोरस. नॉर्मल सल्फर भी था, नॉर्मल फॉस्फोरस भी था. आफ्टर मल्टीपल ट्रांसमिशंस, वे बैक्टीरियोफाज जो वायरस होता है उनका टेंडेंसी क्या होता है पता है? वायरसेस ना अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर लोड कर देते हैं, तो वो अक्खा ऑर्गेनिज्म कभी भी अटैक नहीं करता. वायरस के अंदर एकदम नेकेड डीएनए होता है जो कि कोटेड नहीं होता, जस्ट एक प्रोटीन कोट होता है. एंड वो जो डीएनए है उसके अंदर, वो डीएनए डायरेक्टली वो लोग लोड कर देते हैं. सो वो जब लोड बैक्टीरिया के अंदर जब वो इंसर्ट करते हैं तो दैट बैक्टीरिया विल रिसीव इट द डीएनए. एंड अगर बाय चांस अभी देखो ये चीज जरा समझना है यहाँ पे. डीएनए जो होता है ना, डीएनए जो होता है ना, इट कंटेन्स फॉस्फोरस. ओके, डीएनए जो है इट कंटेन्स फॉस्फोरस. ओके, एंड जो अपना प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है, इट कंटेन्स सल्फर. ओके, सो डीएनए हैव फॉस्फोरस एंड प्रोटीन हैव सल्फर. अभी जो रेडियो एक्टिव अपन ने डाला था, अभी वो जो रेडियो एक्टिव डीएनए था, ओके, जो रेडियो एक्टिव डीएनए जो उनको मिला, ओके, दिस डीएनए वाज फाउंड इन द रेडियो एक्टिव डीएनए, विच मीन्स यहाँ पे रेडियो एक्टिव जो फॉस्फोरस था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, इट वाज फाउंड इन द डीएनए. ओके, वो आपको डीएनए में मिला था. एंड वो जो रेडियो एक्टिव देखो ऊपर अपन ने सल्फर डाला है, रेडियो एक्टिव सल्फर जो डाला, इट वाज फाउंड इन द सेल सरफेस. सेल के सरफेस पे आपको ये मिला. अभी इससे कंक्लूड क्या होता है? डीएनए जो है ये डीएनए जो है इट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम one generation to another. अगर वो सेम चीज अगर वो प्रोटीन करता तो आपको प्रोटीन भी उसी केस में मिल जाता, बट वी डिड नॉट गॉट इट. सो देयरफॉर अपन ने वायरस में भी यही चीज करके देखा, हम लोगों ने बैक्टीरिया में भी वही चीज ट्राई करके देखा. तो मैंने अभी तक तुमको स्टूडेंट्स क्या क्या बताया? इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए, देन अलग अलग साइंटिस्ट जो रिस्पॉन्सिबल थे इस प्रोसेस को करने के लिए. फिर सबसे पहले जो आए हमारे ग्रिफिथ थे, देन हमारे पास एवरी, मैक्लो एंड मैकार्टी थे, एंड देन फाइन दोनों जनों ने बैक्टीरिया पे काम किया. एंड देन the two other scientists, the third batch of scientists worked on the viruses. And finally we got to understand that yes, the DNA is the genetic material, and DNA is responsible for transmission of the characters from one generation to another. And also having said that, protein is not the person or not the molecule per se which is responsible for doing that job. And wahan se a drastic change was seen in case of the field of molecular biology. बहुत सारे अलग अलग चेंजेस आपको देखने को मिले वहां से. एंड इट वाज वेरी वेरी फ्रूटफुल इन अ सेंस दैट बिकॉज अभी अपने को हमारा अभी जो फोकस था वो काफी ज्यादा अभी कॉन्सेंट्रेटेड हो गया ना. अभी अपना फोकस कॉन्सेंट्रेटेड हो गया बिकॉज पहले इनिशियली डिबेट किस बारे में चल रहा था? डिबेट ये चल रहा था कि भाई प्रोटीन है कि डीएनए है. अभी अपने को ये पिक्चर तो अच्छे से क्लियर हो गया कि नो, इट इज द डीएनए which is doing the job, and therefore now henceforth we will talk about none other than the master molecule DNA. So students, let's understand the concept of the packaging of the DNA in both organisms. So सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं packaging of DNA. Okay, पैकेजिंग ऑफ डीएनए. नाउ स्टूडेंट्स, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हम लोग दो ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे. सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो देखने वाले हैं, इट इज द प्रोकैरियोट्स. नाउ यू मस्ट बी नोइंग भाई प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, कुछ पता है प्रोकैरियोट्स के बारे में? एक वीडियो को जरा यहाँ पे पॉज करिए, जरा देखिए
प्रोकैरियोट्स याद करने का ट्राई करें। प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ओके, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते नहीं है। ओके, ऑल्सो ऑल्सो ये तो ठीक है, चलो अपने फिलहाल काम का नहीं है। इट लैक्स न्यूक्लियर membrane and also it lacks न्यूक्लियोलस। अभी ये स्टूडेंट सारा न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट है, ठीक है, विच मीन्स यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, समझ में आ रहा है तुमको? यहाँ पे जो आपका डीएनए रहेगा, इसका जो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए रहेगा, इट विल बी सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। इट विल बी सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। सस्पेंडेड मतलब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, इनको कोई कवरिंग वगैरह नहीं है। एंड जब आप एंड टू एंड डीएनए को जब जोड़ेंगे ना, बैक्टीरिया के डीएनए को एंड टू एंड जोड़ेंगे, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.1 मिलीमीटर। इतना बड़ा डीएनए है, 1.1 मिलीमीटर का डीएनए है, जो कि हमको फिट करना है जस्ट मियरली 2 to 3 माइक्रोन के सेल में। इतने इतने छोटे सेल में इतना बड़ा डीएनए कैसे फिट करेंगे, वही जानने का कोशिश करेंगे। पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। देखो बच्चों, समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बात कर रहा हूं? अभी हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया? वी स्टार्टेड अबाउट पैकेजिंग इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स में हम लोग एक एग्जाम्पल जो लेते हैं, इट इज द ई कोलाई। ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल बैक्टीरिया का लेते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया का, ऑब्वियसली एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेते हैं, और बैक्टीरिया के एग्जाम्पल में वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट ई कोलाई। ठीक है, ठीक है, तो अभी जरा आगे जाते हैं, नाउ पैकेजिंग ऑफ यूकैरियोट्स, सॉरी पैकेजिंग ऑफ प्रोकैरियोट्स, पैकेजिंग ऑफ प्रोकैरियोट्स। देखो इसके अंदर आपको प्रीवियस वाले स्लाइड में कुछ डाउट तो है? पॉज करो जरा वीडियो, देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है क्या? देखिए जरा। नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपके पास आपका जो डीएनए है, सी प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है, इन जनरल काफी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, काफी ज्यादा बड़ा है। एंड बिकॉज काफी ज्यादा बड़ा मतलब ये 1.1 मिलीमीटर का इतना बड़ा डीएनए जो है, which is approximately 1100 micrometers, इतना बड़ा डीएनए, this long of a DNA should be fitted inside 2 to 3 micrometer cell. How do you do it? Now you have to use, अभी डीएनए आपको पता है, मैंने तुमको ऑलरेडी क्लियर कर दिया। डीएनए का चार्ज क्या है, पहले बताया ना, पहले वाले स्लाइड में, डीएनए का चार्ज इज नेगेटिव। सो यू आर गोइंग टू रिक्वायर positively charged proteins. Okay, you are going to require positively charged proteins for wrapping the DNA, and making the size reduced. Okay, reducing the size to about 350 micrometers. इतना साइज अपने को छोटा कर रहा। अभी ये इतना साइज छोटा करने के लिए भैया कौन जिम्मेदार है? यहाँ पे यू हैव certain types of proteins which are none other than histone like DNA binding protein. So you have a kind of प्रोटीन्स। अभी इसमें ना कॉइलिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मतलब क्या पता है, मतलब क्या कि आपका मान लो आपका जो डीएनए है, से फॉर एग्जांपल आपका जो डीएनए है, अभी ये जो डीएनए है इनिशियली तो भाई एकदम थ्रेड फॉर्म में रहेगा, तो मान लो कि वो पूरा इस तरीके से, ठीक है, सो एकदम सर्कुलर फॉर्म में। उसके बाद वो ना फर्दर ऐसा लूप लेता है ऐसा, इसको कॉइलिंग बोलते हैं। तो ये फर्दर कॉइल करता है।
अभी फर्दर जब वो कॉइल करता है, ऐसा बहुत बहुत सारे अलग अलग लूप मिलते हैं फर्दर। अभी मैं ऑल ऑफ द डायग्राम्स आई वोंट बी ड्राइंग हियर, बट इफ यू जस्ट केयरफुली ऑब्जर्व इट, ये फर्दर कॉइल जब ये ऐसा हुआ ना, ये फर्दर जब ऐसा कॉइल हुआ ना, तो इसके अंदर भी सुपर कॉइलिंग आया है। कैन यू नोटिस दिस? ऐसा ना डीएनए का बहुत ज्यादा सुपर कॉइलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड बिकॉज इतना डीएनए आप कंडेंस कर रहे हो, इतना डीएनए कंडेंस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो इतना 1.1 मिलीमीटर का आपका जो डीएनए है, वो 1.1 मिलीमीटर का डीएनए कहीं तो कंडेंस तो हो ही जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? सो मतलब क्या, एकदम एक्सटेंसिव जब आप कंडेंस करेंगे उसको, एकदम डीएनए को सुपर कॉइलिंग कर देंगे, तो दिस इज हाउ अ डीएनए माइट लुक। सो इन शॉर्ट, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर टेकिंग दिस डीएनए फ्रॉम, you're taking this DNA which was initially at 1100 micrometers and reducing it down to a DNA which is approximately 2 micrometers. समझ में आ रहा है? बिकॉज हमारा सेल का साइज ही उतना है। अभी यहाँ पे you have certain proteins, as I've rightly mentioned, you have certain types of proteins which are called as HU proteins. HU protein, HU proteins क्या है? HU proteins are histone like DNA binding proteins, histone like DNA binding proteins. So ये प्रोटीन जो रहेंगे, ये जिम्मेदार रहेंगे इसको फर्दर एंड फर्दर कॉम्पैक्ट करने को, एंड फाइनली रिड्यूसिंग द साइज टू 2 माइक्रोमीटर्स। सो ये पार्ट हो गया। अभी दूसरा पार्ट क्या है? अभी दूसरा पार्ट अपन ये जानते हैं कि भाई हमारे पास यूकैरियोटिक पैकेजिंग कैसा है। So we will talk about packaging of DNA in eukaryotes. Okay, we will talk about packaging of DNA in case of eukaryotes. देखो यूकैरियोट में ना चीजें ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे तो भी डीएनए तो भी 1.1 मिलीमीटर, भी यहाँ पे जो डीएनए ना भैया, यहाँ पे डीएनए ना, इट इज exorbitantly big, 2.2 meters, extensively big. And because we are eukaryotic cells, right, मतलब we are a eukaryotic organism, हमारा जो न्यूक्लियस रहता है रफली 10⁻⁻6 मीटर का है भाई। 10⁻⁻6 मीटर में 2.2 मीटर का डीएनए कैसा फिट करेंगे? बड़ा सा क्वेश्चन है। एंड सेम कैन आई से, यहाँ पे भी डीएनए का चार्ज क्या रहेगा? डीएनए का चार्ज यहाँ पे भी क्या रहेगा? डीएनए का चार्ज विल बी नेगेटिव। नेगेटिव मतलब आपको अगर डीएनए को लपेटना है तो यू विल रिक्वायर पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, you are going to require positively charged proteins, and this positively charged proteins will help the DNA to condense and condense further. Now how this condensation process happens students, यहाँ पे आपको ना एक important protein लगता है, यहाँ पे आपको एक important protein लगता है, and this protein I would rather say this protein is called as histone. ठीक है, हिस्टोन। अभी जो हिस्टोन है ना, हिस्टोन इज मेड अप ऑफ बेसिक, मतलब आई मीन इट्स अ बेसिक प्रोटीन। ओके, इसका नेचर बेसिक है। क्यों ऐसा? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ बेसिक अमीनो एसिड। अगर किसी ने पूछा कौन से बेसिक अमीनो एसिड्स है आपके पास, तो नेमली आप ब्रीफली अब 2 बताएंगे। एक याद रखना है लाइसीन, एंड दूसरा याद रखना है आर्जिनिन। सो वन इज लाइसीन एंड आर्जिनिन। अभी ये जो हिस्टोन है ना, ये हिस्टोन इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ ऑक्टामर। सो इट्स वेरी, इसका जो अरेंजमेंट होता है, दिस अरेंजमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टामर। ऑक्टामर मतलब क्या? आपके पास 8 सब यूनिट्स इसके होते हैं। सो अगर एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दूं, सो इट वुड बी लाइक दिस।
सो जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं शेप ड्रॉ करूँ दैट वुड बी बेटर समझेगा ना वो चीज़, वैसे कर लेते। सो यू हैव वन हियर, वन हियर, इसका साइज थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है। देन वन हियर, ओके, देन यू हैव वन अगेन हियर, ओके, ऐसा हो गया। और सेम टाइप का अरेंजमेंट ना पीछे भी है, तो ऐसा पीछे भी है वो। अभी यहाँ से तो ओवरलैप कर जाएगा ना ये, तो मैं ऐसा हाथ हाथ से बना देता हूँ। तो आपके इधर ऐसा पीछे भी चार है ऐसे, समझे आपको? ऐसा इमेजिन करो जरा, इमेजिन करो यहाँ पे भी ऐसा रहेगा। सो चार आगे वाले साइड और चार पीछे वाले साइड, ओके, एंड देन यू हैव लाइक दिस, ठीक है, ऐसा। अब इसके अंदर इसके ना सब यूनिट्स है, बिकॉज हिस्टोन इज अ डिफरेंट प्रोटीन, सो इट हैज सब यूनिट्स, इट हैज सब यूनिट्स। कौन से सब यूनिट्स है? इसमें से सबसे पहला ये जो आप देख रहे हो ये वाला, इट इज H1, इसको आप सेपरेटली ही काउंट करते हो, उसको आप सेपरेटली काउंट करते हो। देन यू हैव H2A, then you have H2B, then you have H3, and then you have H4, ऐसा है। सो आप इसका अगर अरेंजमेंट देखना चाहे तो इसका अरेंजमेंट कैसे भी मतलब अरेंज कर सकते हैं आप। सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि जो चार हिस्टोन्स रहेंगे, चार आगे हैं, चार आगे हैं, तो मान लो H2, इसको मान लो H2A किया, इसको मान लो H2B कर दिया, इसको मान लो H3 किया, और इसको मान लो H4 किया। दिस इज तो H1 ना। सो वैसा है, वैसा अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से। अभी ये हिस्टोन, ऐसे बहुत हिस्टोन्स होते हैं, बहुत हिस्टोन्स है, इसको आप ऑक्टामर बोलते हैं बिकॉज इट इज ऑफ 8 सब यूनिट्स। एंड इसी को अभी देखो, इसका ना थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में निकालता हूँ यहाँ पे, बिकॉज अभी ना देखो कैसा करना पड़ेगा। देखो मान लो तुम्हारे पास एक इधर है, ये हिस्टोन है तुम्हारा, ये तुम्हारा हिस्टोन है, ठीक है। अब मैंने इमेजिन करो कि चारों सब यूनिट्स है उसके पास, ठीक है, 8 सब यूनिट्स है। इसके अंदर, इसके ऊपर ये ना ऐसा डीएनए रैप हो जाता है, डीएनए रैप हो जाता है। एंड जो H1 है, H1 यहां से एक तो डीएनए H1 हिस्टोन रहेगा, यहां से एक तो डीएनए एंटर करेगा या फिर एग्जिट करेगा, एंटर करेगा या फिर एग्जिट करेगा। अभी ये इस तरीके से डीएनए रैप्ट है। तो अगर इसको ना मैं थोड़ा सा लेसर मैग्नीफाइड करूं, सो इट वुड बी से, मान लो दिस इज 1 2 3 4 5, ओके, मान लो ये हिस्टोन्स है, डीएनए ऐसा रैप्ट है। कैन यू सी लाइक दिस? ऐसा डीएनए का अरेंजमेंट जो है, डीएनए का जो अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से है कि भाई आपके पास ऐसे बहुत सारे लाइन में हिस्टोन्स है, ओके, लाइन में हिस्टोन्स है। एंड ये जब हिस्टोन्स जब डीएनए को रैप करते हैं, सो अभी मैंने तुमको हिस्टोन का चार्ज क्या बताया था? हिस्टोन का चार्ज क्या बताया था? हिस्टोन जो है, हिस्टोन इज पॉजिटिव, ओके, हिस्टोन इज पॉजिटिव। सो when DNA wraps around, no, DNA का चार्ज क्या है? नेगेटिव। when a negatively charged DNA wraps around positively charged histone, okay, पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन, इस स्टेट, इस चीज को जब वो दोनों चीज एक साथ कंबाइन कर जाएंगी, उसको आप बोलते हो न्यूक्लियोसोम, उसको बोलते हो न्यूक्लियोसोम। एंड स्टूडेंट्स, ये जो न्यूक्लियोसोम है ना, न्यूक्लियोसोम, इट अप्रोक्सीमेटली कंटेन्स 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। मतलब इनके पास इतना डीएनए कि 200 बेस पेयर फिट हो जाए। बेस पेयर मतलब कि आपको, आपने भी 11th में सुना रहेगा, हाई लोअर क्लासेस में, 10th में भी सुना रहेगा, एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। अब ये डीएनए में होता है। सो एडेनाइन एंड थाइमिन इज वन बेस पेयर, guanine and cytosine is another base pair, so something like that. So this is a nucleosome. ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम होते हैं। तो अगर अभी जरा थोड़ा इमेजिन करो,
थोड़ा इमेजिन करो कि अगर मैंने ऐसे न्यूक्लियोसोम के रिपीटिंग यूनिट्स लगा दिए, देखो मैं बनाता हूं यहाँ पे। सो 1 2 3 4 5, मान लो रिपीटिंग यूनिट्स है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या रहेगा, ये डीएनए, ये तुम्हारा डीएनए, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ डीएनए appears to be बीड्स ऑन स्ट्रिंग। मतलब क्या पता है, ये मोती के हार जैसा दिखता है, ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एंड तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी स्टूडेंट्स इसके बारे में दिया हुआ है, मतलब इसका फोटो दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप वो भी एक बार देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो बीड्स ऑन स्ट्रिंग दिखता है। इसको फर्दर कंडेंस करो, ठीक है, फर्दर कंडेंस करिए जरा। तो फर्दर अगर मान लो इधर इधर नीचे नहीं, चलो इधर ले लेते हैं, इसको फर्दर कंडेंस करिए। सो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ओके, फर्दर। सो नाउ व्हाट हैपेंस, देखो जरा, क्लोज एसोसिएशन हो गया, ना, क्लोज ऐसा। तो करते करते कंडेंस आप जब करते जाएंगे तो फिर ओवर अ टाइम you also get what is called as a chromatin fiber, or simply you can also call it as chromatin, ठीक है, क्रोमैटिन। अब क्या, टिक इट फर्दर कंडेंस करो। देखो साइज कितना रिड्यूस होते जा रहा है ना, साइज कितना रिड्यूस होते, तो यू कैन टेक इट लाइक दिस, ओके। ऐसा करते 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 यू कैन ऑल्सो फॉर्म अ स्ट्रक्चर विच इज सर्क्यूलर, ओके। तो ना आपका ऐसा भी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे बना सकते हो, देखो जरा। सो यहाँ पे तो समथिंग लाइक दिस, ऐसा, ओके ना। दिस स्ट्रक्चर इज सोलेनॉइड, ओके। तो ये यहाँ पे ऐसा, समझ रहा तुमको क्या कर रहा हूं मैं। तो दिस इज नथिंग बट द सोलेनॉइड स्ट्रक्चर, सोलेनॉइड। एंड फिर जब आप फर्दर कंडेंस करते 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 जाएंगे ओवर द टाइम, आपको ना एक मेगा स्ट्रक्चर मिलेगा विच इज द, इसको तो देखा रहेगा अपन ने, एग्जैक्टली क्रोमोसोम है ये भाई। क्या है एग्जैक्टली क्रोमोसोम में, थोड़ा जूम करेंगे। अभी देखो मैं तुमको ना इसका जूम्ड वर्जन दिखा रहा हूं, तो जरा समझना इसको, एग्जैक्ट इस हिसाब से होगा ऐसा नहीं है। यू हैव ऐसा सोलेनॉइड्स यहाँ पे, ठीक है। फर्दर कॉइल, मतलब देखो इतना कॉम्प्लेक्स, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर यू हैव लाइक दिस, फिर आपको यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी, ठीक है। फिर अभी देखो मैं यहाँ से लूज आउट कर रहा हूँ उसको, कॉइल्ड, ओके, कॉइल्ड। अभी एक सिरे से पकड़ो आप, एक सिरे से अगर मैं पकड़ू, खींच दूं, वापस जाके डीएनए बनने वाला है। तुमको समझ में आ रहा है। इसकी वजह से आप बचपन में लिखते थे, देखो बचपन में लिखते थे, क्या लिखते थे, जो डीएनए है, डीएनए इट इज द, आई एम सो सॉरी, जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम इट इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए ना। कितना कंडेंस किया देखो, तो यू ब्रिंगिंग द साइज फर्दर डाउन, एंड फाइनली जो स्ट्रक्चर आपका बनता है इज व्हाट इज कॉल्ड एज द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को आप जब खोल देंगे, तो बहुत मेजर बड़ा स्ट्रक्चर बन सकता है। देखो गाइस, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। ऐसा इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते 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 कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। सो देयरफॉर यू कैन हैव, देखो अभी यहाँ पे एक मेजर प्रोटीन का जो मैंने बात किया, it was histone. So you have more further one such type of protein, another type of protein which is called as NHC. Now what is NHC? NHC is non-histone chromosomal, just a second, non-histone chromosomal complex.
अभी ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स ये क्या करते हैं, ये जो NHCs हैं, दिस NHCs आर गोइंग टू हेल्प DNA टू पैकेज फर्दर, और ज्यादा पैकेज करने में हेल्प कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए. दिस इज व्हाट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए. देखो जरा गाइस, समझ में आ रहा है क्या? सो बाय एंड लार्ज आपको क्या है कि जब आप डीएनए को पैकेज कर रहे हो ना, सो डीएनए का ना आप साइज कम कर रहे हो, ठीक है. तो लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा था, उसको कंडेंस करते 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 क्रंच कर दिया, फिर एक छोटा स्ट्रक्चर बना. अभी उस छोटे स्ट्रक्चर को अगर मान लो, देखो सी, डीएनए ना हर जगह पे उतना ही इंटेंसिटी से उतना ही टाइटली बाउंड रहेगा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. सो फिर क्या, तो कुछ कुछ जगह पे लूज एंड्स रहेंगे, कुछ कुछ जगह पे टाइट एंड्स रहेंगे. इस बेसिस पे हम लोगों ने इस जो क्रोमैटिन को है ना, ये जो क्रोमैटिन दिख रहा है ना आपको, इस क्रोमैटिन को अपन ने दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर दो हिस्सों में क्लासिफाई कर दिया. ठीक है, अभी मैं तुम्हारे वो जो है वो हिस्से थोड़े बड़े बना रहा हूँ. वैसे दो हिस्सों में अपन ने उसको क्लासिफाई कर दिया. देखिए जरा, तो एक आपको यहाँ पे ये वाला एक डीएनए मिला, फिर एक ये ऐसा थ्रेड है, फिर ये वापस एक डीएनए लपेटा ऐसा. ठीक है, अभी जो जो आई मीन जो क्रोमैटिन इज ऐसा क्रोमैटिन विच इज वेरी टाइटली बाउंड. ओके, वेरी टाइटली बाउंड. Such type of chromatin is called as heterochromatin. ऐसे क्रोमैटिन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोक्रोमैटिन. एंड द फीचर ऑफ अ हेटेरोक्रोमैटिन इज कि जब आप उसको कलर देंगे ना, कलर, सो इट इज वेरी डार्कली स्टेन्ड. ओके, कलर देंगे तो बहुत सारा कलर ये एब्जॉर्ब करता है, जो डार्कली स्टेन हो जाता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हेटेरोक्रोमैटिन इज transcriptionally less active. Okay, less active. अभी आपको ये कहां पे मिल सकता है स्टूडेंट्स? वेयर कैन यू फाइंड दिस? Now chromatin, heterochromatin per se, you can find it in a region called as centromere. You can find it in a region called as telomere. सेंट्रोमियर में दिख सकता है, टीलोमियर में. अभी कुछ कुछ बच्चों को डाउट रहेगा सेंट्रोमियर क्या है, टीलोमियर क्या है. ये तुम्हारा क्रोमोसोम है ना, ये तुम्हारा क्रोमोसोम है ना, इधर वाले पॉइंट को आप सेंट्रोमियर बोलते हो, द सेंटर पॉइंट जो जिससे क्रोमोसोम कनेक्टेड है. एंड द टिप ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज अ टीलोमियर. तो आपको सेंट्रोमियर में दिख सकता है, टीलोमियर में आपको हेटेरोक्रोमैटिन यहाँ पे विजिबल हो सकता है. ठीक है, सेकेंड टाइप का क्रोमैटिन. अभी यहाँ पे सर हेटेरोक्रोमैटिन बताइए. देखो जो हेटेरोक्रोमैटिन है ये यहाँ पे है, दिस इज हेटेरोक्रोमैटिन, दिस इज हेटेरोक्रोमैटिन. ठीक है, दूसरा फिर क्लासिफिकेशन क्या आएगा? दूसरा क्लासिफिकेशन विच इज लूजली बाउंड. ऐसा क्रोमैटिन जो लूजली बाउंड है, लूजली बाउंड क्रोमैटिन इज कॉल्ड एज यू क्रोमैटिन. एंड जो यू क्रोमैटिन होता है, यू क्रोमैटिन, इट इज लाइटली स्टेन्ड. ज्यादा कलर लेता नहीं, बिकॉज डीएनए ही ज्यादा नहीं है ना, वहां पे कंटेंट ही कम है डीएनए का, तो कलर भी कम ही लेगा स्टेन जब कलर देंगे तो. एंड बिकॉज ये लूजली बाउंड है थोड़ा सा, ये भैया जो है यू क्रोमैटिन, इट इज ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव एज कंपेयर टू हेटेरोक्रोमैटिन. कहां पे दिखेगा? ये देखो, दिस कैन बी योर यूक्रोमैटिन, दिस कैन बी योर यूक्रोमैटिन. ऐसा इसके ऊपर आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, बट आई थिंक यू शुड रिमेंबर एंड नो इट. इसकी वजह से मैंने पढ़ा दिया है. ठीक है, तो देखिए जरा बच्चों की कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जरा पीछे भी जा सकते हैं. हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने पैकेजिंग ऑफ यूकैरियोट देख लिया, हम लोगों ने पैकेजिंग ऑफ प्रोकैरियोट्स देख लिया, हर्शियन चेज देख लिया, एवरी, मैक्लियोड, मैकार्टी देख लिया, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट देख लिया, एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को स्टार्ट किया. स्टूडेंट्स, आज के मॉड्यूल में आई थिंक सो वी हैव डिस्कस्ड इनफ. We also talked about the basis of the molecular biology. In the next module, we'll be talking about the concepts which are very, very important, which is DNA replication,
transcription, translation. Maybe probably I'll take two concepts in one module. I can take replication in one module. Then we talk about transcription in the same module. And then I can probably take translation in the other module and lack operon and so on and so forth. So probably I can break this further upcoming videos into more 2 or 3 modules. Okay. So you'll have a better understanding. I will highly recommend you to please go back. इनहेरिटेंस का वीडियो जरा देखिए, कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछिए, बिकॉज जब डाउट्स पूछोगे तो आपके क्लियर हो जाएंगे वो, एंड दैट वुड बी वेरी वेरी एसेंशियल. एंड जैसे कि मैं हर वीडियो में बताते आया हूँ कि वी आर कवरिंग द सिलेबस विच इज ऑप्टिमम एंड एप्ट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस प्रिस्क्राइब बाय महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, एंड वी आर डूइंग वट एवर इज पॉसिबल as far as the syllabus, biology syllabus is concerned. Okay, students, I hope so. My language, the way of communication, the way I explain the concepts to you is clear, and lot of our team members from the YSR Academy are taking huge lot of efforts to ensure that the best of the best content has been delivered to you in free and in easy access. And as you all might be knowing that we also started geography a couple of days ago, and we have physics in the playlist, we have chemistry in the playlist, we also have mathematics, and then we have biology, and now we have geography. So I think so it's a complete holistic package for you guys to ensure sure success in your board exam. Just a humble request from our side and from my side that if you really love the effort that we're taking in, I would highly recommend you to please subscribe to our YouTube channel, like the video so it spreads faster, and please comment down so as we also know what's your feedback, what you guys want us to improve in, so we'll have a better a two-way street rather than a one-way monologue. Because as you all know, camera is just, I'm talking right now in the front of the camera, so it's just a monologue. Okay, but I would expect that if you have some inputs, if you have some kinds of feedback, I'll be very very happy to just inculcate that in the best way possible. And I'm very very sure that you guys must be understanding the teaching methodology which has been conducted at YSR. I'll see you in the next class. We'll talk about DNA replication and also about transcription. Till then, take care and stay safe, and bye bye.